Hello students, welcome to my channel Physics Basics. In the last lecture, we have discussed electric charge and quantization of charge. In this lecture, I will discuss Coulomb's law and its vector form, and we will solve some numericals on the basis of Coulomb's law. Firstly, we will discuss what is the meaning of Coulomb's law. As we have discussed, Newton's law of gravitation, ये हमने प्लस वन में किया हुआ है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें हमने क्या देखा था, इफ वी हैव 2 point masses m1 and m2 separated by a certain distance r, then the force between these two masses is equal to g m1 m2 by r square. This is called as Newton's law of gravitation. Similarly, in order to discuss Coulomb's law, suppose we have 2 point charges. This is Q1 and this is Q2. These two charges are separated by a certain distance r, and these charges are present in the air. Let Q1 is the charge which is present at the point A, and Q2 charge is present at the point B. Then according to Coulomb, the electrostatic force, which is directly proportional to the multiplication of the magnitude of the charges, and it is inversely proportional to the square of the distance between them. If r is the distance of separation between the two charges, then force is inversely proportional to square of the distance of separation. So combining these two factors, we have Q1 Q2 by r square. This is equation number 1. Now we will remove here this proportionality, so we will attach here some constant. So this is constant Q1 Q2 by r square. As in case of gravitation force, we have g m1 m2 by r square. This is a constant which is called as gravitational constant. Similarly, we will write down here one constant which is 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square. Now, in this case, this is our constant where epsilon naught is absolute permittivity of air or free space. In this case, suppose these two charges are separated by a certain distance r, and these charges are present either in case air or in vacuum. Clear? So we will use here constant which is epsilon naught, and this is related to air or free space. The value of epsilon naught is 8.854 into 10 raised to power minus 12. Now we will check its units. In order to find out the units of epsilon naught, we will simply write down F is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square. Epsilon naught is 1 by 4 pi f Q1 Q2 by r square. In the last lecture, we have discussed the charge which have a unit which is Coulomb. So this is Coulomb square per 4 pi have no unit. So the unit for the force is Newton, and unit for r square is meter square. It means that unit for epsilon naught is Coulomb square per Newton per meter square. So I will write down here. This is Coulomb square per Newton per meter square. Okay. So now we have 1 by 4 pi epsilon naught, which is 1 over 4 into the value of pi is 3.14,
and now I will put the value for epsilon naught, which is 8.854 into 10 to the power minus 12. So by solving this, now we have 1 by 4 pi epsilon naught, which is equal to 9 into 10 to the power 9. So we have written the formulation for Coulomb's law is 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square, and the value for 1 by 4 pi epsilon naught is 9 into 10 to the power 9 into Q1 Q2 by R square. But one thing is very important. We have written here this epsilon naught is only applicable for air or the free space. It means that this formulation is Coulomb's law for free space or air. Okay. If we want to write down Coulomb's law for any material or any medium, then we will change its formulation. Clear? So we will also check if these two charges are present in medium, then what will be the Coulomb's law. Okay. So now we have second condition. If these two charges are present in medium, if the charges are present in medium, then what will be the formulation for the Coulomb's law? Now in this case, we will use the constant will be 1 by 4 pi epsilon. In the last expression, we have written here epsilon naught. We have written epsilon naught, but now we have written only epsilon. And Q1, Q2 by R square. Now what is this epsilon? Epsilon is absolute permittivity of the medium. Okay, so now in order to find out the value for this epsilon, we will define here one very important parameter that is called as a relative permittivity. Or it is also called as dielectric constant. Clear? This is very important for 1 marks. Its representation is either epsilon r or capital P. Clear? So we will define dielectric constant and relative permittivity. Then we will find out the formulation for the Coulomb force for the medium. So now we have K or epsilon r. It is defined as the force between two charges present in air to the force between two charges present in the medium. So it is defined as the ratio of force between two charges present in air to the force between the same charges at the same distance present in the medium. Okay. So now we have seen that force in air is how much? 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square, and the force in medium is, we can also write down here medium for the reference. So it is given by 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 by R square. So now we will put the values of F air, which is 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square, and now we will put here F medium, which is 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 by R square. These terms will get cancelled. 1 by 4 pi will get cancelled. So we have, this is the ratio of epsilon by epsilon naught. Clear? So now from this formulation, I can write down epsilon is epsilon naught into epsilon absolute permittivity of the medium. So this value is known, which I have written 8.854 into 10 to the power minus 12. So this is what dielectric constant of the material, which is given in the problem. जब हम कोई भी numerical problem solve करेंगे बच्चों, तो ये हमें दिया होगा, ठीक है ना? So now we will write down
So we have F medium, which is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. The value for epsilon is epsilon naught, epsilon r, Q1, Q2 by r square. So we have already written the value for this 1 by 4 pi epsilon naught is 9 into 10 to the power 9 divided by epsilon r, Q1, Q2 by r square. So in this way we have written the two formulations for Coulomb's law. One is applicable for the air or the vacuum medium and second is applicable for the medium. Okay? So we have, again I will write down for the revision, F air or vacuum is 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square, and force for the medium is 1 by 4 pi epsilon naught epsilon r Q1 Q2 by r square. And one thing we will write down here, the standard formulation for 1 by 4 pi epsilon naught. यहाँ पे भी आ रहा है 1 by 4 pi epsilon naught, यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है. So its value is how much? 9 into 10 to the power 9. Now next we have says Coulomb's law in vector form. So now we will discuss Coulomb's law in vector form. So now what is the meaning for this? Using Coulomb's law we can find out the value of the force. We know that force is a vector quantity. It is a vector quantity. We have studied in class 11th what is the meaning of the vector quantities which have magnitude as well as direction. So using Coulomb's law we have written an expression to find out the magnitude of the force, but now we will find out its direction. So we will write down Coulomb's law in the vector form, which is very important. So now we have, in order to discuss Coulomb's law in vector form, we have, suppose we have xy plane and this is origin. We have two charges. This is charge Q1 and this is charge Q2. Clear? So we have these two charges separated by a certain distance small r. Let small r is the distance of separation between the two charges. Clear? So now we know that if the charges are like, then क्या होगा? Repulsion होगा. If unlike charges हैं, तो क्या होगा? Attraction होगा. हमने पढ़ा है lower classes में भी, for like charges they repel each other and for the unlike charges they attract each other. एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जब वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, जैसे ये दो चार्ज हैं, if they are like charges they will repel each other, तो दोनों एक दूसरे को सेम अमाउंट से रिपेल करेंगे. जितना ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स ये वाला इस पे लगाएगा. क्लियर? The magnitude of the force exerted by the charges is equal. So now we have, in order to discuss this Coulomb's law in vector form, suppose these two charges are like charges. तो like charges positive भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं दोनों. क्लियर? सो अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा. ठीक है? सो क्या होगा? इनके बीच में रिपल्शन होगा. अगर इन दोनों के बीच में रिपल्शन है, सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, तो यहां पे एक फोर्स लगेगा. ये वाला पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये वाला पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा. तो यहाँ पे हमने एक स्पेसिफिक नोटेशन देनी है फोर्स को. सो वी विल राइट डाउन दिस फोर्स इज F12 and this force is F21. So firstly I am writing here what is the meaning for F12. Force acting on
Q1 ड्यू टू Q2। सिमिलरली बेटा F21 क्या होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, सो जिसके ऊपर फोर्स लग रही है उसका रिप्रेजेंटेशन आगे देना है, जिसके कारण फोर्स लग रही है उसका नाम पीछे लिखना है। जैसे ये फोर्स Q1 पे लग रही है Q2 की वजह से, सो हमने 1 आगे लिख दिया, 2 पीछे लिख दिया। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स लग रही है Q2 पे, कहां से लग रही है, Q1 से। सो 2 को हमने आगे लिख दिया और 1 को हमने पीछे लिख दिया। क्लियर? सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग फॉर दिस, वी हैव रिटन इन द class +1, so force vector is what, the magnitude and the direction। कोई भी वेक्टर कंपोनेंट क्या होता है, एक तो उसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा उसमें डायरेक्शन होनी चाहिए। अगर हमें फोर्स वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करनी है, एक तो हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, दूसरा हमें उसकी डायरेक्शन फोर्स पता होनी चाहिए। ठीक है, ये कैप क्या है, दिस इज अ यूनिट वेक्टर। क्लियर? सो वी विल राइट डाउन दिस इन डिटेल। सो नाउ we know that both the charges will exert equal force on each other। मतलब ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स आपस में क्या होगी, बराबर होगी। और होगी कितनी, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो हमने फर्स्टली किया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। क्लियर? इसका मतलब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। Now, firstly, I will write down F12 vector. Clear? So, F12 vector using this expression. So, what we have, this magnitude, F12 magnitude and our direction. Direction लिखने के लिए आपको बड़ी ही ध्यान से करना होगा। यहाँ पे ये देखना है पहले ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, मतलब यहां से चल रही है फोर्स, यहां तक जा रही है। ठीक है, तो जब भी हम किसी फोर्स इस तरह से लग रही है, ठीक है, जब भी हमने यूनिट वेक्टर लिखना है तो हमें बड़ा ही ध्यान से लिखना होगा। यूनिट वेक्टर क्या है, लेट्स सपोज द यूनिट वेक्टर इज r2 कैप। ठीक है, मैं ये बताता हूं नोटेशन कैसे लिखेंगे। यूनिट वेक्टर इज व्हाट, r कैप। ठीक है, दिस इज व्हाट यूनिट वेक्टर। इसका पर्पस क्या है, फॉर डायरेक्शन। ये हमें क्या देगा, डायरेक्शन देगा। ठीक है बेटा। सो नाउ व्हाट वी हैव, दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल A फ्रॉम द पार्टिकल B। स्टार्ट कहां से हुई, Q2 से, और जा किधर रही है, Q1 पे। तो एक चीज हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे जब भी हमें यूनिट वेक्टर लिखना है तो यहां से फोर्स स्टार्ट हो रही है उसको हमने आगे लिखना है, जहां तक फोर्स लग रही है उसको हमने पीछे लिखना है, उसको हमने पीछे लिखना है। क्लियर? जैसे ये F2 फोर्स क्या है, स्टार्ट यहां से हो रही है, यहां पे जा रही है, इसका मतलब इनिशियल पॉइंट क्या होगा, Q2, एंड फाइनल पॉइंट क्या होगा हमारा, Q1। सो वी विल राइट डाउन दिस इज 2 1 बिकॉज इनिशियल पॉइंट इज 2 एंड फाइनल पॉइंट इज 1। सो दिस फोर्स इज R21 कैप। समझ आया ये सारे? So now similarly we will write down F21 vector which is equal to, now again I will write down its magnitude and now our direction. This is the direction for F21. F21 is the force acting on the 2 number particle which is starting from Q1. It means ये force कहां से कहां तक जा रही है, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, it means that its starting point is Q1 and final point is Q2. So its direction will be, क्या होगी बताओ, सोचो, R12. Clear? So now in this way we have written, this is equation number 1, this is equation number 2. Also we have studied in the class 11 that R12 cap is equal to minus R21 cap. This is what? This is the unit vector from 2 to 1. This is again a unit vector from 1 to 2. इसमें मैग्नीट्यूड तो है नहीं, इसका भी मैग्नीट्यूड यूनिट होता है, इसका भी मैग्नीट्यूड यूनिट है। इट मींस दे आर रिप्रेजेंटिंग ओनली द डायरेक्शन। एक इस डायरेक्शन में है, दूसरा उस डायरेक्शन में है, मींस दे आर इक्वल एंड अपोजिट।
दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, इसलिए हमने बराबर रख लिया, बट इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो हमने नेगेटिव साइन रख दिया, ठीक है। नाउ आई विल पुट हियर this value of R12 cap in equation number 2. So we have value in equation number 2. We have F21 vector which is equal to F21 mod, and this is what? This is negative of R21 vector. Clear? This one. So now we have F21 vector which is equal to, one thing we have written earlier, that F12 force is equal to F21 force. Clear? So दोनों forces एक दूसरे के ऊपर जो लग रही हैं, इनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है. So इस फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं F12 mod. Clear? And नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा. So this is what R2 cap. So now F21 vector which is equal to, now ये हमारा क्या बन गया, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई. So I can write down this quantity as a negative of F12. It means that in vector form Coulomb's law obeys Newton's third. Now we will discuss Coulomb's law in vector form in terms of position vectors. In terms of position vectors. So this is very important article, इसको ध्यान से करना है हमने. So क्या चीज है हम देखेंगे. ये हमारे पास क्या है, एक xy प्लेन है. xy प्लेन में हमारे पास क्या है, दो पार्टिकल्स हैं. Let this is again Q1 particle and this is Q2 particle. Clear? So suppose Q1 particle हमारा A point पे है और Q2 particle हमारा B point पे है. Clear? So let the position vector of Q1 particle is R1 vector and the position vector of Q2 particle is R2 vector. Suppose that these charges are like charges Q1 and Q2. ये कौन सी तरह के चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं. सो अगर ये लाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, तो इनमें क्या होगा बेटा, रिपल्शन होगा. ठीक है, रिपल्शन होगा तो दो फोर्सेस लगेगी. एक का नाम क्या होगा, ऑलरेडी हमने देख लिया, इसका नाम होगा, ये फोर्स कहां पे लग रही है, 1 पे, सो 1 2, और इसका नाम क्या होगा, F21. क्लियर? ये आपको बड़े अच्छे से समझना है. ये लाइक चार्जेस हैं तो इनमें क्या हो रही है, रिपल्शन हो रही है. ठीक है, एक चीज और बताना मैं भूल गया. दिस कूलम्स लॉ जो फोर्स हमें देता है, विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज सेंट्रल इन नेचर. सेंट्रल का मतलब क्या है, दिस फोर्स इज सेंट्रल इन नेचर. ठीक है, सेंट्रल फोर्सेस कौन सी होती हैं, सेंट्रल फोर्सेस वो होती हैं जो फोर्सेस एक्ट करती हैं ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू पॉइंट्स. सपोज मैं समझाता हूं सिंपल. दीज आर द टू चार्ज्ड पार्टिकल्स. दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2. एंड ये क्या चीज है, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन Q1 एंड Q2. अगर कोई फोर्स इस तरह एक्ट करे, ये क्या होगी, अट्रैक्शन फोर्स होगी, और या फिर इस तरह एक्ट करे ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू पॉइंट्स, तो इन टाइप की फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्सेस. क्लियर? कूलम लॉ जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक की हमें फॉर्मुलेशन देता है, दैट फोर्स इज आल्सो सेंट्रल इन नेचर. मींस दिस फोर्स मींस रिपल्शन और अट्रैक्शन will lie on the line joining between the two points. Clear? So इसलिए हमने इसकी डायरेक्शन बिल्कुल इस लाइन के ऊपर ही ली है. ठीक है, so इसको कैसे सॉल्व करते हैं, this is very very important. So now we have F12 which is equal to F21. मैग्नीट्यूड तो हमने देख लिया ऑलरेडी. Both the charges will exert equal and which is given by 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. So if
ए बी कितना ले लिया हमने, आर ले लिया। द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन Q1 एंड Q2 इज हाउ मच, दिस इज आर। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करते हैं इसको। F12 ऑलरेडी हमने लिख लिया। F12 क्या होगा, F12 मोर एंड अ डायरेक्शन। डायरेक्शन कहां से कहां तक, ये फोर्स देखो अब कहां से कहां तक लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है। दिस इज आउटवर्ड फोर्स, मतलब ये चलेगी कहां से, Q2 से, और जाएगी किस डायरेक्शन में, Q1 की डायरेक्शन में। तो इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, 1 से 2 या 2 से 1। Its direction is from 2 to 1. So we will write down here R2 1. Okay. So now I will put here the formulation for F12, which is 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square into R21 cap. ठीक है बेटा। So in the next step we will take a supposition, ऊपर भी आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वन क्या जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर क्यूब आ जाएगा। एस क्लियर है, क्यूब आ जाएगा। सो नाउ यहाँ पे क्या बनेगा, आर इंटू R21 क्या। ठीक है, सो एक चीज हम प्लस, हमने डेफिनेशन ऑफ वेक्टर पढ़ी थी, तो हमने ये चीज देखी थी वहां पे प्लस वन में। मतलब क्या है इसका, a vector divided by its magnitude will give us a unit vector। याद आ गया आपको, vector divided by its magnitude will give us a unit vector। so ये क्या चीज है, this is magnitude, और ये क्या चीज है हमारे पास, unit vector। तो अब इसको देखें, मतलब मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, सो नाउ ये क्या चीज बनेगी, हम देखते हैं इसको। F12 which is 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R cube. Now this is what, R into R21. This distance is R and direction is 2 to 1. It means that, तो बनेगा क्या ये, R into R21 कैप क्या बनेगा, a vector कहां से कहां तक का, 2 से लेके 1 तक का। क्लियर, ये देखो, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर विल प्रोड्यूस अ वेक्टर। क्लियर, इसको हम R21 वेक्टर भी बोल सकते हैं, और इसका नाम ये भी रख सकते हैं, RBA वेक्टर। 2 पॉइंट का मतलब B, 1 का मतलब A। तो ये वेक्टर कहां से कहां तक हो गया, चाहे तो इसको लिख लो 2 से 1, चाहे लिख लो B से। क्लियर, so now we have, this is what, RBA वेक्टर। ठीक है बेटा, so now एक चीज हम और यूज करेंगे, ट्रायंगल लॉ हमने यूज किया था, यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो हमने क्या बोला था ट्रायंगल लॉ में, this vector is what, this is vector is now RBA vector, this vector is RBA vector। ठीक है, ट्रायंगल लॉ हमने क्या बोला था प्लस में, if two vectors are represented by the two sides of a triangle then the third side in the opposite order will give its resultant। दो sides ये वाली और ये वाली they are in the same order, और ये तीसरी साइड क्या चल रही है, that is in the opposite order। so I can write down OE vector which is equal to OB vector plus BA vector। this is the equation, कहां से आई है, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और वैल्यू हमने कहां से, वैल्यू हमने किसकी फाइंड आउट करनी है, आरबीए वेक्टर की। देखते हैं आरबीए वेक्टर कहां पे है, ओए वेक्टर, ओए वेक्टर दिस इज R1 वेक्टर, OB वेक्टर दिस इज R2 वेक्टर, BA वेक्टर मतलब दिस वन, दिस इज RBA वेक्टर। इट मींस दैट RBA vector which is equal to R1 minus R2। Clear? So this vector is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R cube into this vector is what,
R1 minus R2. Okay, so now what is the meaning for this? अब ये R क्या चीज है? R क्या है? A से लेके B तक का डिस्टेंस। RBA वेक्टर कौन सा है? A यहां से लेके यहां तक। इसका मतलब ये हुआ R is the distance between B and A। ठीक है जी। और ये RBA वेक्टर क्या चीज है? ये भी कहां से कहां तक है? और वेक्टर फ्रॉम B to A। RBA वेक्टर है यहां से लेके यहां तक का। अगर हम इसका मॉडुलस कर दें, मतलब RBA का मॉडुलस, मतलब यहां से लेके यहां तक जो वेक्टर है उसका मॉडुलस कर दें तो कितना आएगा? वो R ही आएगा ना, क्योंकि R क्या है? यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड, और इसका मॉडुलस कर दिया मतलब यहां से यहां तक के वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो विच इज इक्वल टू R। सो R को हम क्या लिख सकते हैं? RBA वेक्टर मॉड। और हमने RBA वेक्टर की वैल्यू क्या निकाल दी है? दिस इज R1 माइनस R2। तो हम R को क्या लिख सकते हैं? R1 माइनस R2 वेक्टर मॉड। So this will become F12 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R1 minus R2 mod, and this is R1 minus R2। ठीक है बेटा? So ये हमारा फॉर्मुलेशन आ गया किस चीज का? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इन द फॉर्म ऑफ द पोजीशन वेक्टर्स। सो सिमिलरली आप इसको सॉल्व करके देखना, वैल्यू ऑफ F21 भी निकाल के देखना with the same method that I with the same method जो मैंने आपको बताई हैं। So इस तरह से जो मेथड हमने इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉलो किया था, सेम मेथड हम यहाँ पे फॉलो करेंगे टू फाइंड आउट। ये आप करके देखना। सो इसका आंसर कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। देखो ये है 1 2, इसमें आया R1 माइनस R2, ये है 2 1, तो इसमें क्या आएगा? R2 माइनस R1। ठीक है, और नीचे जो चीज ऊपर उसी का मैग्नीट्यूड, सॉरी यहाँ पे मैंने क्यूब नहीं लिखा। ठीक है, जो चीज वेक्टर ऊपर उसी का मॉड क्यूब। तो ये वेक्टर हमारा क्या है? R2 माइनस R1, तो इसी का मॉड और फिर उसका क्यूब। ठीक है, सो इन दिस वे आई कैन फाइंड आउट द फॉर्मुलेशन फॉर F12 एंड F21 इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन वेक्टर्स। तो अब हम इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज फाइंड the force between two electrons separated by 3 angstrom in air। ठीक है, तो ये मैं बिल्कुल सिंपल टाइप का न्यूमेरिकल ले रहा हूं जिसमें उन्होंने हमें क्या दिया है? We have to find out the force between the two electrons. They are separated by a 3 angstrom distance in air। तो हमें उन्होंने बता दिया कि हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। ठीक है ना, हमने ऑलरेडी दो फॉर्मूले यूज किए, एक फोर्स इन एयर और दूसरा फॉर्मूला हमने यूज किया फोर्स इन मीटर। तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए फॉर्मुलेशन क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है? दिस इज वेरी सिंपल। तो आपने क्या करना है, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट अच्छे से पढ़नी है। पढ़ने के बाद जो जो चीजें आपको लग रहा है कि आपको दी हुई हैं उनको नोट कर लो। जैसे इन दिस केस दे हैव गिवन अस 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब Q1 हमारा कितना हो गया? इलेक्ट्रॉन की चार्ज जितना। Q2 हमारा कितना हो गया? ये भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज जितना। डिस्टेंस उन्होंने कितना दे दिया? हमारी 3 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और बोला क्या हमें? दे हैव asked to find out the amount of force between the two charges। ठीक है, सारी चीजें लिखने के बाद सब चीजों को हम कन्वर्ट कर देंगे इनके ऐसे यूनिट्स में। Q1 दिस विल बी नाउ 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, दूसरा चार्ज भी कितना है? इलेक्ट्रॉन
उसके ऊपर वैल्यू कितनी होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, डिस्टेंस कितना दिया 3 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम कितना होता है हमारा 10⁻⁻10 मीटर। सभी वेरिएबल्स को हमने किस चीज में लिख लिया इन देयर एसआई यूनिट्स। नाउ फोर्स फाइंड आउट करेंगे। फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, ये फॉर्मूला किसके लिए लगता है एयर के लिए। ठीक है, दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक मीडियम के लिए दूसरा एयर के लिए। सो वी विल यूज दिस फॉर्मुलेशन एंड वी हैव स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर दिस कांस्टेंट। दिस इज हाउ मच 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 हमारा कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। Q2 हमारा कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हमारा कितना है r3 इंटू 10⁻⁻10। सो 3 का स्क्वायर भी करना है। सो ये क्या होंगे 3 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻10 10⁻⁻10। दिस विल गेट कैंसल। सो हमारी फोर्स कितनी आ गई 1.6 इंटू 1.6 इंटू पावर्स हम देख लेते हैं 10⁻⁻19 सो ये मेरी बन गई 10⁻9 इंटू 10⁻13 8 एंड ये हमारी कितनी बन गई 10⁻20 29 38। सो दिस इज 10⁻⁻9 और ये हमारा कितना बन गया 1.6 इंटू ये हमारा कितना बन गया 2.56। सो हमारा आंसर कितना आ गया बेटा 2.56 इंटू 10⁻⁻9। इस तरह से सिंपल न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। सो सेकंड न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम। सो सेकंड न्यूमेरिकल है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन्स separated by a certain distance r such that force कौन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between them is equal to weight of the electron find r। तो सेकेंड मेडिकल में हमें क्या दिया है, फिर हमें दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, चार्ज हमारा क्या हो गया Q1 and Q2 इलेक्ट्रॉन्स जितना। They are separated by a certain distance r such that the force between them is equal to the weight of the electron। So हमें क्या क्या बोला उन्होंने electrostatic force which is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square which is equal to the weight of the electron। ठीक है, Q1 हमें कितना दे दिया उन्होंने सेम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज जितना दे दिया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Q2 हमें कितना दे दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। वेट कैलकुलेट करने के लिए हमें मास भी पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का, दैट इज 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, g की वैल्यू कितनी होती है 9.8 होती है। सो अगर आप चाहते हो कि थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल हो जाए तो इसको हम 10 भी ले सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो नाउ वी हैव 1/4 pi epsilon naught 9 into 10⁻9 into Q1 हमारा हो गया this one, Q2 again this one। So 1.6 into 1.6 into 10⁻⁻38 because Q1 Q2 -19 we will have -38 divided by r square which is equal to 9.11 into 10⁻⁻31 into 10। So now r कैलकुलेट करना है, r को इधर ले जाएंगे, बाकी सारे टर्म्स नीचे ले आएंगे। So r square is 9। पावर्स को हम पीछे लिख लेते हैं, पहले सिंपल 9 लिख लेते हैं। 9 into 1.6
into 1.6 divided by 9.11 into, this is how much? 10 is power minus 29. Clear? Plus 9 minus 38, so this is minus 29. So now this is how much? Minus 31. This is plus 1. So this is 10 is power minus 30. Okay. So now we have, on simplifying this, we can write down its value is roughly 1.52. Clear? आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके अपने कैलकुलेटर पे इसको देख लेना, सॉल्व करके ये कितना आएगा 2.52 के आसपास आएगा, और ये पावर ऊपर चलेगी, सो दिस विल बी 10 is power 1. सो आर स्क्वायर हमारा कितना आ गया बेटा 25.2. सो r is what? अंडर रूट ऑफ 25.2. 25 का अंडर रूट कितना होता है 5, तो 25.2 का अंडर रूट इज रफली 5.001. So this is our answer. Clear? So now next what numerical है हमारे पास. So पहले इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं. 2 equal charges 4q and plus 4q are separated by a distance r. A third charge q is present on the line joining between these two charges. Clear? So we have to find the location of third charge such that it is in equilibrium. So this is very important numerical. तो हमें क्या दिया हुआ है, दो चार्जेस दिए हैं, ये कितने का है 4q का पॉजिटिव है, ये भी कितने का है 4q का है, ये भी पॉजिटिव है. ठीक है. Separated by a certain distance. Let the distance of separation between them is r. ठीक है. A third charge q is present on the line joining between these two charges. तो एक थर्ड चार्ज पॉजिटिव q है जो इनकी लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है. कहते हैं फाइंड द लोकेशन ऑफ द थर्ड चार्ज सच दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम. और थर्ड चार्ज हैवी कौन से नेचर का, वो भी क्या है पॉजिटिव है. ठीक है. इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे. दो सेम तरह के चार्जेस भी दे हो सकते हैं, जैसे ये दोनों पॉजिटिव दे दिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ये दोनों पॉजिटिव दे दिए थर्ड चार्ज नेगेटिव हो जाए. सो इस तरह के काफी कॉम्बिनेशन इनमें आते हैं. ठीक है. सो इस तरह के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं. सो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर दो इक्वल चार्जेस मतलब दो लाइक चार्जेस हैं आपके पास और थर्ड चार्ज भी पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली ये थर्ड चार्ज इसके कहीं अंदर आएगा, ये नहीं पता हमें कहां पे आएगा. ठीक है. सपोज दिस पोजीशन इज ए, दिस इज बी, हमने इसकी कोई पोजीशन सपोज कर ली सी, हमें पता नहीं वो कहां पे है, यहाँ पे भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता. लेट द डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम ए इज x. तो ये कितना हो गया हमारा, ये टोटल आ रहा है, ये x है, तो ये कितना हो गया हमारा r माइनस x. ठीक है. तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स के लिए हमें कंडीशन दी है, हमने द थर्ड चार्ज इज सच दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, नेट फोर्स on third charge is 0. Means
सी पॉइंट पे जो कैपिटल क्यू चार्ज है उसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है? 0 फोर्स लग रही है। मींस एफ नेट क्या है हमारा? 0। ठीक है, तो देखते हैं कितनी तरह की फोर्सेस लग रही है इसके ऊपर। अगर हमने इसको प्लस क्यू को यहाँ पे रख दिया, ये वाला भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसने इसको रिपेल करना है तो एक फोर्स लगेगी इस तरफ। ठीक है, लगेगी किसके ऊपर? सी के ऊपर। किसके कारण? ए के कारण। तो इसका नाम क्या हो गया? एफ सी ए। ठीक है, हमने अभी नोमेनक्लेचर देखा था, जिसके ऊपर फोर्स लग रही है उसको पहले लिखना है, जिसके कारण लग रही है उसको बाद में लिखना है। ठीक है, दूसरी फोर्स हमारी, ये भी प्लस 4 के हुए, ये भी प्लस 4 के हुए, इन दोनों में भी क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो ये वाला पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि आउटवर्ड्स जानी है फोर्स। ठीक है, इस फोर्स का नाम क्या होगा? एफ सी बी। ठीक है जी, तो हमने देख लिया दो फोर्सेस लग रही हैं पॉजिटिव क्यू के ऊपर, एक इस दिस, एक लेफ्ट साइड को, एक राइट साइड को। ठीक है, अगर एफ नेट 0 है, इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास? बराबर होना चाहिए। सो एफ सी बी वेक्टर इज इक्वल टू एफ सी ए वेक्टर। ठीक है बेटा, अगर बराबर है तो इनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा। तो आप वैल्यूज लिखते हैं, तो वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ सी बी, दिस वन फोर्स, प्लस क्यू, this charge is 4q divided by distance is what? r minus x square. Clear? और दूसरी फोर्स कैलकुलेट करते हैं बिटवीन c एंड a. This is how much? 1/4 pi epsilon naught, one charge 4q, second charge positive q divided by x square. Cancel, ये भी सारा cancel. So what we have? We have दो टर्म्स बची हमारे पास। So हमारे पास बना क्या? x square is r minus x square. Okay, so now we will solve this equation. दो तरीके हैं, एक तो इसको क्वाड्रेटिक बना लो, उससे सॉल्व कर लो, या फिर इसको स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, सो टेकिंग इट्स स्क्वायर रूट on both sides, we have x is plus minus r minus x. ठीक है बेटा, तो इसको हम फाइंड आउट करके देखेंगे पॉजिटिव साइन रखने से क्या आएगा, नेगेटिव साइन रखने से क्या आएगा। तो पहले हम पॉजिटिव साइन रखते हैं। तो व्हाट वी हैव r minus x, सो हमारा बन क्या गया? 2x is r, इट मींस दैट x हमारा कितना आ गया? r/2। तो इसका मतलब क्या है? ये डिस्टेंस कितना है? r का हाफ है। इसका मतलब ये सी पॉइंट कहाँ होगा? बिल्कुल a और b के सेंटर में होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट सॉल्व करते हैं। x is equal to minus of r minus x, इसका मतलब क्या हुआ? x is equal to minus r plus x, ये तो फिर कट गया, x की नो स्पेसिफिक वैल्यू, नो आंसर, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो आंसर हमारा कितना है? x is equal to r/2। क्लियर? सो उन्होंने पूछा क्या था हमसे? फाइंड द लोकेशन ऑफ द थर्ड चार्ज। सो लोकेशन क्या आ गई हमारी? x is equal to r/2। ठीक है, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये वाली। टू स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स ईच ऑफ मास m kg and charge plus q coulomb are suspended from the same point using the silk threads of length L meter. If theta is angle made by each thread with the vertical during the equilibrium, show that we have this relation. Clear? So now this is very important numerical. So now हमारे पास क्या है? एक जगह है, that the point of suspension is, यहाँ पे हमने क्या किया? ऐसे दो सिल्क थ्रेड के ऊपर दो स्फेरिकल बॉल्स लगा के हमने उनको रख दिया। दोनों का मास कितना है? कैपिटल M kg है, कैपिटल M किलो है, और दोनों के ऊपर चार्ज कितना है? कैपिटल Q है। ठीक है ना? चार्ज भी दोनों के ऊपर क्या है हमारे पास बेटा? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा? दे विल रिपेल ईच अदर, रिपल्शन होगी दोनों में। तो रिपल्शन होगी तो एक दूसरे से वो इस तरह कुछ सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है जी, जब वो सेपरेट हो जाएंगे
तो जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया तो हमें प्रूव करना है कि उस स्क्वायर की इतनी वैल्यू हो, ठीक है। अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया तो हम देखते हैं इसके ऊपर कितने फोर्सेस लगेंगे। देखो ये क्या है, हमारे पास दो बॉल्स हैं, ये क्या हमारे पास सिल्क थ्रेड्स हैं, ठीक है। बॉल्स दोनों का मास कितना है mkg, तो वेट कितना लगेगा कैपिटल mg, ठीक है। और वेट की डायरेक्शन क्या होती है वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, और चार्ज कितना है इनके ऊपर पॉजिटिव किया, तो अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी, लाइव चार्जेस है तो रिपल्शन होगी, ठीक है। So we have repulsion like this. Suppose this is point A and this is point B, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी फोर्स लगेगी हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, यहाँ पे भी कौन सी लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, ठीक है। और जैसे ही चार्ज रिपेल होगा, स्फेरिकल बॉल्स किसके साथ कनेक्टेड है, थ्रेड्स के कनेक्टेड है, तो इनके अंदर क्या पैदा हो जाएगा, टेंशन पैदा हो जाएगा। सो नाउ व्हाट वी हैव in this case, let this is the vertical line and they have given theta is the angle made by each thread with the vertical. So ये दोनों threads ने कितना angle बना दिया with the vertical, theta angle बना दिया, ठीक है। So suppose this point is, कोई भी point ले लेते हैं इसको, so इनको P point ले लिया, ठीक है। So this is 90-degree angle, okay. So we have one theorem in which we will discuss this is the force which is acting along the line AP and this weight is acting along the line PS and this tension is acting along the line SC, ठीक है। Now we have three forces, एक क्या होगा हमारा weight, दूसरा क्या होगा हमारा electrostatic force, तीसरी हमारी क्या होगी tension। If we have three forces acting along the three sides of a triangle, then we have a relation which is given by Fe divided by AP, which is equal to weight over, so we have parallel side that is PS and tension is along this line which is ES. So we have this one important property, ठीक है। So we will use these two components. So what is Fe? The force is electrostatic force between these two charges. Clear? So now also they have given the threads are of length capital L meter. Means हमारे पास SA और SD कितना है बेटा capital L है, ठीक है। So now this much distance is capital L. So now firstly we will find out Fe हमारा क्या है 1/4 pi epsilon naught Q1, this is positive Q, Q2 again positive Q divided by this distance square. So this distance is how much, AB square, okay. So now this is a symmetric system. In this case AB is simply equal to double of AP, okay. So now using triangle APS, we will firstly find out this length AP. So using this triangle APS, we have sine of theta which is equal to perpendicular over hypotenuse. Perpendicular is what, AP. Hypotenuse is what, this one. This is AS, which means that AP over capital L. So हमारा AP कितना आ गया बेटा, L sin of theta. So now we will put here 1/4 pi epsilon naught Q square over AB square. AB क्या है हमारा double of AP. AP है L sin theta. So this is what 2L sin theta whole square. Okay. So now we will put the value in this equation. We can write down Fe over mg, which is equal to AP over PS. This is AP
and PS is this one. So from the triangle, using triangle APS, we can also write down tan theta is what? Perpendicular over base. So this is AP over PS. It means that AP over PS is what? This is our tan of theta, which is equal to tan of theta. So we will use this factor to find out our relation. So I will write down. So I can write down FE is equal to mg tan of theta. So now FE is what? FE is our 1 by 4 pi epsilon naught q square by 2l sin theta whole square, which is equal to mg tan of theta. So q square will be equal to 4. So now by cross multiplication 4 pi epsilon naught, and I can also expand this one. It will be 4 l square sin square theta into mg tan of theta. Okay, so now q square, which is equal to 4 pi epsilon naught, so 4 mg l square sin square theta tan theta. So we have the same answer जो इन्होंने हमें पूछा है. इस तरह से ये न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए हैं. बाकी प्रॉब्लम्स आप अपने खुद के लेवल पे कर सकते हो. आप चाहे एनसीईआरटी फॉलो कर लो, चाहे आप कोई और रेफरेंस बुक्स आप देख लो, या बहुत सारी पब्लिशर्स की बुक्स हैं, उसमें से आप अपने न्यूमेरिकल्स खुद ट्राई करो. ओके, थैंक यू.